In today's session, we will study the fourth chapter, that is the chemical bonding and molecular structure. A chemical bonding molecular structure. Now first we should know what is a chemical bond. Now a chemical bond, we know that atoms are not capable of free existence, but they try to combine together to form molecules or compound. So when the molecules combine together, they combine with a certain chemical bond, and that chemical bond is the force of attraction with which the atom holds together in a molecule is called a chemical bond. So what is a chemical bond? Chemical bond is the force of attraction that holds different atoms in a molecule is called a chemical bond. Now I will give you some examples. Hydrogen. Now hydrogen combines with hydrogen to form H2. So these two atoms combine together to form, the atoms combine together to form molecules. So this is the force of attraction. This bond formed is due to the force of attraction between the two atoms, is called a chemical bond. Now before going through it, you should know what is octet rule. Octet rule is that every atom or element try to acquire 8 electrons, or they try to complete their configuration by either losing or by gaining electron, either by losing or by gaining electron. For example, if you take sodium, its configuration is sodium 281, first shell 2, second shell 8 and third shell 1. So it will try to lose this electron to become Na plus. So that is to complete its octet. Second example you can take chlorine. Cl has 17 electrons, so 287. Now in this one electron is less, so it will try to accept the electron to become Cl minus. So this is called octet rule. Now what is valence electron? A valence electron is the electrons present in the outermost orbit. For example, suppose this is nucleus. I am taking the example of sodium only. This is the first shell, K shell. It has 2 electrons. Then comes second shell. पूरा गोले में रहेगा. Total here 8 electrons, and here it is 2 electrons. So 1 electron is present here, and this is called valence shell. In the previous chapter also we have discussed. This is called valence shell, and the electron present in this valence shell are known as valence electron. So valence electron in sodium is 1. Valence electron in chlorine is 7. Now the facts stated by Kosel in relation to chemical bonding. In periodic table, the highly electronegative element
that is halogen, and highly electropositive alkali metal, they are separated by noble gases. Means that halogens have one less electron to complete its inert gas configuration, and the sodium, that is alkali metal group, has one more electron to complete its octet. So in between the group present is noble group. You can take the example, this is the group number 17th, this is group 18th, and again this is group 1. He said कि between the highly electropositive group and highly electronegative group, in between inert gas, that is noble gas, was present, and the formation of cation is by loss of electron, and the formation of anion is by gain of electron. And in both the cases, the formation of cation and anion is by acquiring octet rule, by completing its configuration, or by acquiring the noble gas configuration. And the negative and positive ions are stabilized by electrostatic attraction. Then this you can see, sodium gives you Na plus. We can take another example, that is magnesium. It has 12 electrons, so it is 282. It will give Mg2 plus 2 electrons. Now इसी तरह से एग्जाम्पल आपका सल्फ़र का आप ले सकते हैं. सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 16 आपका जो है, इसका मतलब कि हो गया 286. तो 6 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो ये आपका क्या है, दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये देगा आपका S2 माइनस. इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया. अब ये जो आयंस बने हैं, Mg यहाँ पे बना 2 प्लस, और नीचे बना है S2 माइनस. तो इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड. तो इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द चार्जेस. नाउ मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. There are 3 methods to form bond. First method is by transfer of electrons. It means that in the bond, one atom is highly electropositive and the other atom is highly electronegative. So it has 1 valence electron and chlorine has 7 valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वही लिखे हैं मैंने, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं. अगर सिंबल के साथ इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाए तो वो लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है. अब ये सोडियम क्या करेगा, पूरी तरह से इसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा. तो ट्रांसफ़र करने के बाद सोडियम पे आ जाएगा चार्ज Na प्लस, और Cl पे आ जाएगा चार्ज माइनस. तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग जो है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called ionic bond. Second is by sharing of electrons. Now second method is by sharing of electrons, means the bond formed by, means equal number of electrons are shared. So that is called, you can say, mutual sharing. The simplest example of it is hydrogen has 1 electron
it combines with second atom of the hydrogen to form, that is, you can draw like this. This is the covalent bond, or if you want to show sharing, and the 2 electrons are here. अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे, अभी तो धीरे से बता रहे हैं. तो ये हो गया हाइड्रोजन. तीसरे तरह का जो बॉन्डिंग होता है वो होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क ये है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. इसमें जो शेयरिंग होगी वो सिर्फ एक ही एटम देगा और दूसरा लेगा. एक एग्जाम्पल है आपका कोवलेंट बॉन्ड का NH4 प्लस. अब NH4 के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, Cl माइनस से ले लेता है. तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड जो है आपका कहलाता है डेटिव बॉन्ड. और डेटिव बॉन्ड को जो लेता है उसकी तरफ हेड रहता है और जो देता है उसकी तरफ टेल रहता है. मतलब Cl ने अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिया इस अमोनियम आयन को, तो अमोनियम आयन की भी पूरी तरह से भर गया और Cl का भी काम चल गया. Cl के पास एक कम था, तो ये जो है ये Cl माइनस ने इसको दे दिया, तो ये बनता है डेटिव बॉन्ड. और जो देता है वो कहलाता है लुईस बेस, और जो लेता है वो बोलता है लुईस एसिड. Now next is, now first bonding we will study, that is ionic bond or electrovalent bond. Ionic bond or electrovalent bond. So again, those bonds which are formed by complete transfer of electrons from one atom to another, and it is formed between metals and non-metals. This is the important point, कि they are formed between metals and non-metals. Ionic bonds are formed between metals and non-metals, and electrostatic force of attraction is found between the two oppositively charged ions. Electrostatic force of attraction is found between the two oppositively charged ions. You can take the same exact is second example I will take, that is calcium chloride. Now calcium, its atomic number is 20. So configuration will be 2 8 8 2. अब ये भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे. और दूसरा है आपका क्लोरीन. क्लोरीन का होता है तो 2Cl हमने ले लिया. इसको लिखने के लिए हमको लुईस स्ट्रक्चर जरूर लिखना चाहिए. सो दिस इज़ द लुईस स्ट्रक्चर, एंड Cl के पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गए आपके 7. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को दे देगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो इट विल फॉर्म एक, ये 2 एक साथ लिखे, कंफ्यूज मत हो जाएगा मैडम, एक इसके पास तो 7 है, एक ही कम. एक Cl, ये 2 Cl या 2Cl लिखा है, मतलब 2 Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं. सो कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ गया 2+, और
क्लोरीन के पर चार्ज आ गया माइनस और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कैल्शियम भी खुश, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन भी खुश। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, पूरा ही लिख दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया है कि NaCl जो है, फिर से है NaCl अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने, इसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने दिया किसको, Cl को दिया जिसके पास 7 थे। ये हो गया आपका ट्रांसफ़र। तो इसने बना लिया। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ऐसे ही दिखाना होगा आपको। और ये हो गया Cl माइनस 1 2, ये हमने एक जगह क्रॉस और एक जगह गोला बनाया जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं आपके सोडियम का, और ये वाला जो है आपका इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है कैटायन हुआ, क्लोरीन जो है आयन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी से मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो यहाँ पर इसने जो है इलेक्ट्रॉन 282 दो है, इसने ऑक्सीजन को दिया तो मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज हो गया और O पे 2- चार्ज हो गया। तो इसके बाद अब एक डेफिनेशन और आती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। अब आप देखो यहाँ पर मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 दिए हैं, और ऑक्सीजन ने 2 लिए हैं, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई। उसी तरीके से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने 1 लिया है, तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। जितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं और या दूसरे जितने लिए हैं वही उसकी इलेक्ट्रो, तो जो देता है और दूसरा उतना ही लेता है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स affecting the formation of ionic bonds. Number 1 is ionization energy. अब आपने भी पता किया कि बॉन्ड जो बनेगा आयनिक बॉन्ड वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। इसका मतलब कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है और नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है पहले बताया, फिर वंस अगेन, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू कैटायन। किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना आसानी से कैटायन बनेगा और उतना ही आसानी से जो है आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, उतना आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आप ये जानिए, पूछा जाता है कि फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे, तो lesser the ionization energy, easier will be the formation of cation and have greater chance to form an ionic bond. And this is the reason due to which alkali metals have more tendency to form an ionic bond, and the ionization energy of sodium is 496 kilojoule per mole. उसी से अगर हम मैग्नीशियम का लेते हैं
तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा है, नियरली डबल तो नहीं कहेंगे लेकिन डबल के आसपास है। इसीलिए अगर देखेंगे तो सोडियम को आयनिक बॉन्ड बनाने का ज़्यादा चांस रहेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। नाउ सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy is defined as the energy required when an isolated gaseous atom takes up an electron to form an ion. Greater the negative electron gain enthalpy, easier will be the formation of ion. जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उतना उसको इच्छा होगी एनायन बनाने की और आयनिक बॉन्ड बनने की। इसीलिए हैलोजेंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पूरे पीरियड में, इसलिए आयनायन भी बहुत आसानी से बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। और इसका एक जनरल एग्जांपल आपको हम बताएं और भी आसानी से है कि ग्रुप 1 and 2 with ग्रुप 16 and 17, मतलब मोस्ट कॉमनली इन दोनों ग्रुप, दो इधर और दो इधर, इन ग्रुप्स के बीच में ही जो है वो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और थर्ड फैक्टर है वो है आपका दैट इज लैटिस एनर्जी। Lattice energy is the amount of energy required to separate one mole of ionic compound into separate positively charged ions। ये अभी आप पहले पढ़ रहे हैं। मान लीजिए Na प्लस है, Na प्लस के एक मोल को सेपरेट करने में, मतलब आयंस को अलग अलग करने में जो एनर्जी लगती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और जो लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है आपका दो फैक्टर्स पे करता है। पहला फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ द आयंस। जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। और दूसरा चार्ज ऑन द आयन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उतनी ही ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होगी। तो ये आपने पढ़ा। तो तीन फैक्टर्स पढ़े जिसके ऊपर जो है आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। पहला आपका आयनेशन एनर्जी, जितनी कम आयनेशन एनर्जी होगी उतना आसानी से बॉन्ड बनेगा। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। और तीसरा है लैटिस एनर्जी, वो लैटिस एनर्जी भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक बॉन्ड, this we have studied in class 10th also. Only the first is physical state. The ionic compounds generally they are crystalline solids. Ionic compounds are crystalline solids and they do not exist as a single molecule. They do not exist as a single molecule, they exist as a crystal lattice. वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लें NaCl, अभी तक हमने पढ़ा NaCl बनाया। NaCl जो है आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड है तो इट एग्जिस्ट इन अ
मैं सिर्फ एक छोटा सा यूनिट बना रही हूँ। तो NaCl जो है अकेले नहीं रहता, इट एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल and alternate ions are present. Now suppose this is Na plus, so this will be Cl minus, this will be Na plus, so this will be Cl minus, this will be Na plus, so this will be Cl minus, then this is Na plus, so this is Cl minus. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक यूनिट सेल में कितने NaCl होंगे तो आप जोड़ लीजिए, 2 इधर हैं और 2 इधर, 4 जो है आपके NaCl जो है एक यूनिट सेल में पाए जाएंगे। तो दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डू नॉट एग्जिस्ट अलोन as the covalent compounds like H2N2O2 Cl2. Next is that is melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आयनिक कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इनके बीच में जो है हाई इंटर आयनिक फोर्सेस हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी सॉल्युबिलिटी। ये अब इसकी बहुत अच्छी पॉइंट ये है, एक रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसमें डिजॉल्व होगा। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड होते हैं, सो दे विल सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, बट डू नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड CCl4। रूल है, रूल मैं एक बार लिख ही देती हूँ यहाँ पर। रूल इज लाइक dissolves like, means polar will dissolve in polar solvent and non-polar compounds in non-polar solvents. Now you can see that ionic compounds are polar. Ionic compounds polar, so dissolves in water, but do not dissolve in organic solvent. Covalent compounds, they are non-polar, so they will dissolve in non-polar solvent like organic solvent. धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको खुद ही याद हो जाए. Next property is electrical conductivity. Now the ionic compounds are good conductor of electricity in molten and aqueous state. Again the very confuse किया जाता है आप लोग को. Solid state में जो है they are poor conductor of electricity, but in molten state they, or in dissolved state, they conduct electricity because the ions. What is electricity? Electricity is the movement of electrons in opposite direction. So in solid state the ions are not free to move, but in molten state or in dissolved state they are free to move, therefore they are good conductor of electricity. And next point is, that is ionic compounds gives ionic reaction, and these reactions are very fast and takes place within a fraction of seconds. इतना तेज हो जाते हैं कि आपको पलक झपकाए नहीं कि रिएक्शन हो जाएगा. एग्जाम्पल है कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे, फिर वही ये रिएक्शन तभी होगा जब आपका रिएक्शन तभी होगा जब जो है ये एक्वस स्टेट में होंगे. तो देखिए लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हाईलाइटर ने काम कर रहा है.
NaCl एक्वस AQ मैंने पानी के अंदर डिजॉल्व किया है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। जब ये डिजॉल्व होंगे तो आयंस इनके अलग अलग हो जाएंगे, और जब आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो बनाएंगे AgCl प्लस NaNO3। आप देखो Na के साथ नाइट्रेट का आयन चला गया और इसके साथ ये आ गया, तो इसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये जो एरो है ये बताता है कि PPT white precipitate of AgCl is formed. Now this was the first type of bond. Now the second bond is covalent bond. Covalent bond, as that is here, it is a scientist Lewis and Langmuir concept. Covalent bond is the bond formed by sharing of electrons, and the combining atoms here are same, then they form non-polar covalent bond. Homoatomic, then they form non-polar covalent bond, but if they are different they form polar covalent bond. I will give you some examples. See here, example is there. First example they have not written. Chalo. The first example, hydrogen. Hydrogen has only one valence electron. It combines with the second atom of hydrogen, and both of them combine to form the molecule, and we will show this is the first atom of hydrogen, this is second atom. So the overlapping shows that they have, the bonding has formed. This is called single covalent bond. Now second example is, that is formation of O2. Now you can see here oxygen, its number is 6, so configuration will be 2 4, sorry, its atomic number is 8, so it is 2 6. So valence electrons are 6. This is the Lewis structure of oxygen. Symbol with valence electron is Lewis structure, and two molecules here combine together to form this O2. So we can show in this two, this sharing is taking place. Now you can see here the 2 electrons from this oxygen and 2 electrons from this oxygen. तो म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए आ रहे हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग है, तो ये बनाता है आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप देखेंगे इसमें 2 पॉइंट्स और आप जानेंगे कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो नहीं करते हैं बॉन्डिंग में उन्हें कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे से स्पेलिंग गलत लिखते हैं, LOIN लिख देते हैं, गलत है, स्पेलिंग इज LONE। सो लोन पेयर electrons. So if you count here in O2 molecule, so this is 1 2 3 4 pair of lone pair and 2 pairs bond pairs are present in O2. So I will give you one more example. This is not good. CO2. Now CO2, carbon has 6 electrons,
So 4 valence electrons. Now oxygen has 6 valence electrons. Now this oxygen has 6 valence electrons. And now you can see that in the circle total 8 electrons are there, you can see. Now in first circle 8 electrons, in middle circle 8 electrons, in the corner circle 8 electrons. So this is the structure of oxygen, carbon dioxide. Now how many lone pair and bond pair you can count here, because to find out formal charge you should know to draw structure. If you do not know the draw structure, then you will find difficulty in thermodynamics chapter also. So please practice it. Now next example is water. Now water, that is H2O, one atom of hydrogen, one atom of oxygen and one atom of again hydrogen. So here overlapping takes place, HOH. बट अभी चलिए बताते हाइड्रोजन यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सीधा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बेंट होता है. क्यों बेंट होता है? क्योंकि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और 2 पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक ये है और एक ये. तो इसका मतलब है इनके बीच में रिपल्शन पाया जाता है. तो जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 8 मिनट होना चाहिए था, वो 105 डिग्री हो जाता है ड्यू टू द रिपल्शन, ड्यू टू repulsion between lone pair and bond pair. Now next example is, that is formation of ammonia. So in the ammonia, 1 atom of nitrogen and 3 atoms of that is hydrogen is present. Now you can see here, that is, once again I will draw ताकि clear हो जाए आपको. नाइट्रोजन के पास टोटल हमारे पास 7 क्यों होगा, 2 5 है, 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो आपका देखिए 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5. नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. कैसे? एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले शेल में 2 गया, दूसरे में 5 गया. अब इसको 3 चाहिए, तो ये 3 कहाँ से पाएगा? ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लेके इधर आ गया, एक हाइड्रोजन लेके इधर आ गया, एक हाइड्रोजन लेके इधर आ गया. अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने ये अपना यहाँ से ले लिया. इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए, इसने ये ले लिया. इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए, उसने ये ले लिया. और आपके पास अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 8. तो आप देखिए, तो ये हो गया आपका अमोनिया. फिर अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि वाटर का है, लेकिन इसका जो है बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री 8 मिनट्स हो जाता है. सेम आंसर होगा, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. नाउ Lewis representation of
simple molecules, that is Lewis structure. कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. पहला पॉइंट कहता है कि यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम. अभी तक हम ऊपर यही कर रहे थे कि हर एटम्स के पास कितने वैलेंस, जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 है, नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्सीजन के पास 6 है. तो हमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनिंग एटम के बीच काउंट करना पड़ता है. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कोई एनायन कितने इलेक्ट्रॉन ले करके बनेगा और कोई कैटायन कितने इलेक्ट्रॉन दे के बनेगा, उसी को हम लोग को पता होना चाहिए. जैसे सोडियम 1 दे के बनता है और क्लोरीन 1 ले के बनता है आयनिक बॉन्ड के लिए. थर्ड पॉइंट कहता है कि हमको केमिकल सिंबल पता होना चाहिए. किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या होगा वो हमें पता होगा, तभी हम जो है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. और लास्ट पॉइंट ये है, कहता है कि आफ्टर प्लेसिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में अकाउंट फॉर आइदर मल्टीपल बॉन्ड और अ लोन पेयर. वो ये कह रहा है कि अगर हम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और बस ये ध्यान रखना है कि टोटल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके कंप्लीट होने चाहिए. आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ. जैसे पहला है CO. फर्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन के पास जो है आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 2 और आपका ये हो गया 3 4. ऑक्सीजन के पास हमारे होते हैं 6, तो 6 बनाएंगे तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6. अब आपने देखिए अगर बनाया इस तरह से स्ट्रक्चर तो ये आपका बन गया, इसके पास 8 हो गया, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के पास सिर्फ 6 ही रह गए. इसका मतलब कि यहाँ पर एक जो है गड़बड़ है, तो ये स्ट्रक्चर फिर हो गया गलत. तो हमें करना पड़ेगा कि 1 मिनट, ये हमने एक्सप्लेन किया आपको. यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो हम ड्रॉ कर दें यहाँ पर. अब आप देखो दोनों के पास बराबर बराबर हो गए, 8 इसके पास भी हो गए 8. लेकिन आप इन्हें कहोगे कि मैडम ये इलेक्ट्रॉन आपने क्यों लिख दिया. ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आए हैं कार्बन के पास, तो उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. और उसको अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ लोन पेयर तो हमको ड्रॉ करना ही है और यहाँ से ऑक्सीजन का भी ड्रॉ करना है. बीच में 2 बॉन्ड तो क्या बने थे आपके, कोवेलेंट बॉन्ड बने थे जो कि शेयरिंग से बन गए. और तीसरा बॉन्ड जो बना है वो बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, ऑक्सीजन ने दिया है, इसलिए टेल उसकी तरफ है और हेड कार्बन. तो कार्बन ने लिया है और ऑक्सीजन ने दिया है, तो इसके बीच में 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको भी बता दिया है, ऑक्सीजन भी आपने कर लिया है. नाउ कम टू O3. O3 में आपके 3 ऑक्सीजन है. ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है और ये तीसरा ऑक्सीजन. मैं अभी स्ट्रेट बना रही हूँ, आपके बुक में जो है एंगुलर है, एंगुलर होता है ड्यू टू लोन पेयर, लेकिन पहले आप इसको समझिए. O2 बनाना सबको आ गया और नहीं आ गया तो फिर से बना रही हूँ. पहले O2 का देखिएगा, ये आपका फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन है और ये थर्ड ऑक्सीजन है. पहले हम 1 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस ऑक्सीजन के पास 6 हैं
तो ये 2 4 6। now this oxygen has again 6। मैं इसको दूसरा सिंबल बना देता हूँ, आपको पहचानने में मदद होगी। हो गया। लेकिन अब इस ऑक्सीजन के पास इसको मैं हॉलो बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो अब इनके बीच में आप ऐसे स्क्वायर, ऐसे गोला बनाइए। देखिए इसका 8 बन गया। इसी तरह से ये 8 बन गया। ये 8 बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे O डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। उसी तरह से अब आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, SO3 के लिए आपको फिर वही करना है। ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन। सल्फर के पास ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, आपको बस ये करना है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। 6 मतलब सल्फर के पहले हमने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 और इसके पास हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर ड्रॉ करेंगे गोला तो सबके पास देखिए 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे आ रहा है, यहाँ छोटे में लिख के देखिए O डबल बॉन्ड S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हैं, तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें आप जो बॉन्ड पेयर तो बना दिया, लोन पेयर भी आप चाहे तो आराम से बना सकते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 2 हैं, 1 2 3 4। सल्फर के पास नहीं है, इसके पास 6 हैं, 1 2 इसके पास 6 हैं। इस तरह से आप HClO4 का ड्रॉ करके देखिएगा। सल्फेट आयन चलिए बना देते हैं। ना सल्फर के पास 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और इधर ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 कम रह गया, आप काउंट करिए तो टोटल कितने हो गए, 7। तो ये क्या करेगा, आप H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये क्या बनाता है, 2H प्लस SO4 2 माइनस। ये 2 माइनस चार्ज कब होगा, जब ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब
जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, हाइड्रोजन से आया, इसमें नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से इधर ये ऑक्सीजन है, इसका 6 हो गया। देखिए इसके पास भी 8 हो गए। अब इसी तरह से नीचे वाला ऑक्सीजन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए इतना साफ आपको नहीं लग रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग। इसको मुझे करना चाहिए था। आ जाओ भाई, नहीं हो रहा जान। तो आपका यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। तो एक स्क्वायर ऐसे स्क्वायर बना लीजिए, हाइड्रोजन से आया। और अब देखो सल्फर के पास भी 8 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6। तो इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये आपको हो जाएगा ऐसे, ऊपर वाले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नीचे वाले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से कोवलेंट O माइनस O, यहाँ पे भी O माइनस, और ये O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। इसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। So in today's session we have studied about the ionic bond and covalent bond.